آج ہم جس دیش میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ہمارا مہان دیش بھارت ہے، جو کہ ایک طرف بھارت دنیا کی سب سے بڑی اکونامکس میں شامل ہے اور یہاں بہت سارے کروڑ پتی بھی ہیں۔ دوسری طرف یہاں کی بہت بڑی تعداد آج بھی غربت کا شکار ہے، خاص طور پر ہمارے یوتھ اور اسٹوڈنٹس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں امیری کی علامت بڑی بڑی عمارتیں، لگژری کارز اور ہائی پروفائل پارٹیز ہیں، لیکن دوسری طرف لاکھوں لوگ آج بھی بیسک چیزوں کی کمی محسوس کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوان جو ہائی لیول ایجوکیٹ ہونے کے باوجود نوکریوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ بھارت میں ریپڈ ڈیولپمنٹ ہونے کے باوجود یہ ترقی ہر کسی تک کیوں نہیں پہنچی؟ ایسے نوجوان جو اپنی محنت اور ایجوکیشن سے بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع کیوں کم ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک کنٹری جو کہ اتنی امیر ہے، وہاں بہت سے لوگ کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کیا ہے اس کے پیچھے کا کالا سچ جو آج تک ہم سے چھپائے رکھا گیا؟ وہ کون سا سسٹم ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس ٹریپ سے کیسے بچا جائے اس کا سلوشن بھی نکالیں گے۔ پرانے دور میں زندگی بہت سادہ تھی، ریسورسز اور نیسیسٹیز آسانی سے مل جاتی تھیں۔ درختوں کے پھل، شکار، سادہ کپڑے اور چھوٹے سے خیمے یا جھونپڑے، زندگی انہی سادہ چیزوں پر چلتی تھی جو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ نہ پیسوں کی ضرورت تھی، نہ کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر جیسے جیسے تمدن نے ترقی کی، زندگی کمپلیکسٹی اور فروگیلٹی کی جگہ پر ایکسٹرا ویگنس نے لے لی۔ یہ تبدیلیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آیا ہم واقعی خوشحال ہیں یا صرف میٹیریل ویلتھ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ آج کی دنیا میں زندگی گزارنا تو واقعی چیلنج بن گیا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پرائزز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کس حد تک ایکسٹرا ویگنٹ ہو گئے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ریئل نمبرز جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ ہماری پرائورٹیز، ہمارے فیشن کہاں جا رہی ہیں۔ اب دیکھو، کھانے ہی کی مثال لے لو۔ آج کے دور میں بڑے شہروں جیسے کہ دلی، ممبئی میں ایک فینسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کا بل ایزیلی 5 سے 10 ہزار روپے تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی بڑی فیملی کی ڈنر کی بات ہو تو یہ اماؤنٹ 20 ہزار سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ تصور کریں کہ صرف ایک ڈنر پر اتنا پیسہ، اور کچھ لوگ تو چیف ہائر کرتے ہیں، وہ بھی لاکھوں کی سیلریز پر، تاکہ وہ کھانے کو پرفیکٹلی ڈیکوریٹ کرے، جو کہ ایک چیف کی ایزیلی ماہانہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک کی ہے۔ اب ڈرنکس کی بات کریں، مہنگی وائن، وڈکا اور وسکیز، یہ سب ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ایک اچھے برانڈ کی بوتل کی قیمت 10,000 سے 50,000 روپے تک کی ہو سکتی ہے۔ USA کی ایک ریسرچ کے مطابق وہاں پر ہر سال الکوہل پر تقریباً $250 بلین، جو تقریباً 20 لاکھ کروڑ روپے بنتے ہیں، صرف الکوہل کے نام پر خرچ ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف USA کی بات ہو رہی ہے، ذرا امیجن کریں کہ باقی دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اور کپڑوں اور لیگژری برانڈز، کلوتھس اور ڈیزائنر بیگز اور لیگژری آئٹمز کی بات کریں تو انگلینڈ میں ایک سروے کے مطابق وہاں کی عورتیں پرفیومز پر سالانہ 8 کروڑ پاؤنڈ، تقریباً 1000 کروڑ روپے خرچ کر دیتی ہیں۔ یہاں ہمارے بڑے سٹیز جیسے کہ ممبئی، دہلی یا حیدرآباد میں لیگژری کلوتھنگ برانڈز کے اسٹوریج پر جا کر دیکھ لو، ایک برانڈڈ سوٹ یا ڈریس کی قیمت 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، اور شادیوں کا خرچہ وہ تو الگ ہی داستان ہے۔ ایک مڈل کلاس ویڈنگ پر بھی آج کل کم سے کم 20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا لیوش ہو تو یہ رقم
करोड़ों में पहुंच सकती है। अब सोचो ये सब एक्सपेंसेस हम कहां से मैनेज कर रहे हैं और क्या वाकई ये सब वर्थ इट है। हम अपने बच्चे को न्यू आईफोन्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, ब्रांडेड क्लॉथ्स और डिज़ाइनर बैग्स से लेकर दे रहे हैं, मगर क्या हम उन्हें ये भी सिखा रहे हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है। हम अपने घर वालों के साथ एक डिनर के लिए लाखों खर्च करने को तैयार हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि इसी पैसे से कितने लोग अपनी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं, कितने बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त हो सकता है, कितने फैमिलीज़ को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। आज हमें सोचना होगा कि क्या वाकई ये सब चीज़ें हमारी हैप्पीनेस डिफाइन करती हैं। दोस्तों, ये सब जो हमने बात की ये तो सिर्फ सरफेस है इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम की। अब आगे देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी डिज़ायर्स और कंफर्ट के लिए क्या क्या नहीं किया। सिर्फ लिविश लाइफ स्टाइल और लग्जरी आइटम्स पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पूरी सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ को भी शेक कर दिया। अपनी प्लेजर के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोफेशंस क्रिएट किए कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डांस बार, ट्रैफिक वोमेन, प्रोस्टिट्यूशन और क्या क्या नहीं। ज़रा तसव्वुर करें, ख्याल करें कि ये सब कुछ सिर्फ अपनी डिज़ायर को सेटिफाई करने के लिए। और उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट किस पर हुआ? हमारी वुमेन जो सोसाइटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट हैं, उन्हें उन इमोरल एक्टिविटीज़ में पुश कर दिया गया। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए नए तरीक़े ढूंढे। सिटकॉम्स, मूवीज़, सिनेमा की वो रंगीन तस्वीरें जिन्होंने मुआशरती वैल्यूज़ को शेक करके रख दिया, और ये सब कुछ सिर्फ उनकी लग्जरी और शौक की खातिर। और फिर हम यानी हमारा मुस्लिम मुआशरा भी इस चीज़ को अडॉप्ट करने में पीछे नहीं रहा। हम भी फख्र से कहते हैं कि हमने मगरिब के उन गैर फितरी एक्टिविटीज़ को अपना लिया है। यही वो हालात थे जिनको देखकर हमारे शायर, हमारे फ़िलोसोफर डॉक्टर इकबाल ने कहा, वही बुत फरोशी वही बुतगिरी है, ये सिनेमा है या सनअते आज़ारी है। वो मज़हब था अक़वामे अहदे कुहन का, ये तहज़ीबे हाजिर की सौदागरी है। इकबाल ने अपनी पोइट्री में लाउड और क्लियर मैसेज दिया, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी महज एक तिजारती सौदागरी बन चुकी है। इसमें ना मॉरल्स है ना ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ का कोई पास है। आज के दौर में तो हाल ये है कि एक कॉमेडियन, एक जोकर, एक मस्खरा, जिसकी इनकम एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की इनकम से ज़्यादा है। सोचो, एक टाइम था जब लीडर्स के किरदार और इंटीग्रिटी की मिसाल दी जाती थी, और आज वो टाइम आ गया है कि एक क्लोन की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज ये दुनिया सिर्फ मेटेरियलिज्म और इंटरटेनमेंट के पीछे भाग रही है। यार, हमें अब सीरियसली दोबारा इस पर गौर करना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि क्या हम वाकई अपने रूट से इतने दूर हो गए हैं कि हम सिर्फ कैपिटलिज्म और मॉडर्न सोसाइटी के इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, हमने अभी तक बात की कि किस तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी सरमायादाराना निज़ाम ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है। एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां सिर्फ मेटेरियलिज्म और डिज़ायर्स को प्रायोरिटी दी गई है, मगर ये सब बस सरफेस है और हकीकत बहुत ज़्यादा डीप है। कैपिटलिज्म की एक सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये सिस्टम अपने अंदर एक बड़े ट्रैप की तरह है, जिसने पूरी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और इस ट्रैप का सबसे डेंजरस वेपन है सूद का कारोबार, इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस। आज का दौर देखें, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ममालिक को देखें, क्या वहाँ कोई भी ऐसा बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिला सूद यानी इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज दिस होल सिस्टम रन्स। सूद लोगों को डिबेट में डाला जाता है,
इंटरेस्ट के नाम पर उन्हें एक सर्कल में डाल दिया जाता है, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जाता है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो ये सरमायादाराना निज़ाम एक ऐसी मशीन है जिसका फ्यूल ही इकोनॉमिक एक्सप्लोलेशन है। ये सिस्टम अपनी ग्रोथ के लिए लोगों की मुश्किलात, उनके पेन और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का इस्तेहसाल करता है। एंड द वर्स्ट पार्ट, इस एक्सप्लोलेशन की जड़ें इतनी डीप हो चुकी हैं कि उन्हें निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लोगों को लोन दिए जाते हैं सूद पर, हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, और फिर उन लोन को रैपी करना एक नाइटमेयर बन जाता है। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में चाहे आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो या कोई बिजनेस वर्नर, डिबेट से निकलना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा शैतान का जाल है जिससे निकलना मुश्किल है। जितना निकलना चाहेंगे उतने ही उसमें फंसते जाएंगे। अब सोचे ये सिस्टम जो कि सूद पर चलता है किस हद तक मुआशरती नाहमवारी को बढ़ा रहा है। इमेजिन करें कि एक पर्सन जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहा है वो कैसे सरवाइव करेगा जब उस पर हैवी इंटरेस्ट रेट्स का बोझ डाल दिया जाए। यही वजह है कि आज के दौर में हमें बहुत सारी इनक्वालिटीज देखने को मिलती है, इनजस्टिस देखने को मिलती है। आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम ने इनक्वालिटी को इतना बढ़ा दिया है कि एक तरफ तो चंद लोगों के पास इतनी वेल्थ है कि वो उसका काउंट भी नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आम इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सरमायादारी निज़ाम की इकोनॉमिक तबाहियाँ किसी कौम की इकोनॉमिक कंडीशन तभी इम्प्रूव हो सकती है जब हर इंडिविजुअल को बेसिक नेसेसिटीज़ मुयस्सर हो और कोई भी बेसिक नीड्स से महरूम ना हो। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा इशू यही है कि ये रिसोर्सेज और वेल्थ को चंद इंडिविजुअल या फैमिलीज़ में कंसंट्रेट कर देता है, जिससे बाकी पॉपुलेशन पॉवर्टी और डेप्रिवेशन का शिकार हो जाती है। कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अ फ्यू वेल्थी, कि ये वेल्थ को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोग अपनी एक्सट्रीम वेल्थ को लग्जरी और अननेसेसरी चीज़ों पर वेस्ट करते हैं, जबकि मेजॉरिटी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रही होती है। इस सिस्टम के अंदर सोसाइटी की ओवरऑल तरक्की प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। जब कैपिटलिस्ट नेशंस दूसरे ममालिक पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हासिल कर लेते हैं तो उन ममालिक की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेप्रिवेशन में चली जाती है। कैपिटलिज्म एक पैरासाइट की तरह है जो वेल्थ का खून चूस लेता है, और जहाँ भी उसका असर होता है वहाँ से ये रिसोर्सेज ड्रेन कर लेता है। अगर हम ये तसव्वुर कर ले कि पूरी सोसाइटी एक ही जिस्म है, एक ही बॉडी है और उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, आज़ा है, पार्ट्स हैं, तो अब अगर उस पार्ट में से पूरी ताकत और एनर्जी एक ही लोगों के पास हो जाए, एक ही बॉडी में जम जाए, तो दूसरी बॉडी, दूसरे पार्ट खुद ब खुद बेकार हो जाएंगे, वो एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर कहा गया कि तुम ना अहलों को अपना माल ना दो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, यानी माल को ज़िंदगी गुजारने के लिए मादा मटेरियल कहा गया है। अब मटेरियल अगर एक ही लोगों के पास या चंद लोगों के पास या चंद फैमिलीज़ के पास जमा हो जाए तो बाकी लोगों का गुजारा कैसे होगा। यही है कैपिटलिज्म का सबसे खतरनाक वेपन, और सोसाइटी के हर इंडिविजुअल तक नहीं पहुंची। रिसोर्सेज कहती हैं कि दुनिया की हाफ फुल हंगर या अब जब ऐसा होता है, जब पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाता है तो आवाम में एक तरीके की भगदड़ देखने को मिलती है। और इस कैपिटलिज्म का खुलासा और माहसल यही है कि इसमें अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब। इससे क्लास वार शुरू हो जाती है, और जब आवाम ये महसूस करने लगते हैं कि इस जंग
اور خراب حالت کا اصلی کیس وہ گورنمنٹ ہے جو اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اسے قائم رکھنا چاہتی ہے، تو اس پبلک کی ہارٹ ریٹ کا رخ گورنمنٹ کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور ایک آمد بجنگ آمد کی انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے۔ اس کانفلکٹ کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہتا ہے جس میں عوام کی طرف سے اسٹرائکس اور ریبلیشن حکومت کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ مزدور اور کسان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اس لیے آپ کو کیپٹلسٹ گورنمنٹ میں روز بروز بغاوتوں اور اسٹرائکس کا ایشو نظر آتا ہے، جو کہ اسی ان ایکول اکنامک سسٹم کا رزلٹ ہے، جس کی وجہ سے حکومت ان اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اس سسٹم نے پورے طریقے سے سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے پیٹ سے نکلا ہوا اور ایک سسٹم والے ویڈیو میں ہم اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔